We all know how hard it is to lose weight. But what if you have to lose it twice? In this video, I will share my fitness and weight loss journey with you guys. So watch this video till end. Last video I told you that I made lot of mistakes and regret during my fitness and weight loss journey. तो आज की वीडियो में मैं वही सारे रिग्रेट्स एंड सारी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करूंगी. So stay tuned. When I was born, I was a healthy kid. I was an overweight kid. But gradually, I was okay. I lost that baby fat and I was fine. I was so around 10th standard when we were giving our board exam. I started gaining weight. In plus 2, when we have to give entrance exam for our engineering, I gained a lot of weight. And then my mother and my sister decided that I should join gym. So eventually I joined gym after my competitive exams. मेरा पहला जिम बहुत ही बेसिक था, वहाँ पे बहुत बेसिक इक्विपमेंट्स थे. बट व्हेन यू आर सो ओवरवेट आप इनिशियल वेट काफ़ी जल्दी लूज़ कर लेते हैं. सो आई लॉस्ट 7 to 8 kgs वेरी ईजिली इन दैट बेसिक जिम ओनली. फिर हमारे कॉलेज लग गए, फर्स्ट ईयर था, मेरा जिम 24 आवर्स ओपन नहीं होता था. आई couldn't go and couldn't continue to go to gym. कॉलेज गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज वो काफ़ी बड़ा था, तो काफ़ी वॉक हो जाती थी विद इन कॉलेज, काफ़ी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती थी. सो बाय माई ओन आई लॉस्ट अराउंड 5 kgs मोर. मैंने कोई डाइट पर्टिकुलर फॉलो नहीं की थी. आई यूज टू ईट लाइक द बेसिक घर का खाना एंड बाहर कैंटीन में हो जाता था. आई यूज टू ईट एवरीथिंग एंड आई वॉज स्टिल ओवरवेट. और 2013 आई डिसाइडेड टू जॉइन जिम अगेन. तो मैंने 2013 में दोबारा जिम ज्वाइन किया समर वेकेशन पे एंड आई वॉज स्टिल इन कॉलेज. और उस टाइम पे मैंने पहले तो एक मंथ के लिए किया, बट हमारी छुट्टियां काफ़ी एक्सटेंड हो गई थी. उस ईयर काफ़ी गर्मी पड़ी थी तो हमारी छुट्टियां एक्सटेंड हो गई थी. तो मैंने अराउंड 2-3 मंथ्स कॉन्टीन्यूस जिम किया था. And I lost around, I think 15 to 16 kgs weight straight in 3 months. And I used to look very thin, very thin. मेरी डाइट में कोई शुगर नहीं थी. कल वीडियो में बताया कि आपको शुगर रिप्लेस करनी है नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर से. आई डिडंट डू दैट. उस टाइम पे मैंने कोई वीडियोस नहीं देखी थी, इतनी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस होती भी नहीं. सो आई जस्ट completely avoided sugar. कोई नेचुरल शुगर नहीं, which it was very bad. ट्रस्ट मी, ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी. मैंने शुगर को कम्प्लीटली ही अपनी डाइट से इग्नोर कर दिया. आई शुड हैव रिप्लेस इट विद नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर. एंड नंबर 2 मिस्टेक विच आई डिड वॉज आई स्टॉप ईटिंग फ्राइड ऑयली फूड टोटली एंड कम्प्लीटली. आई वॉज लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म गोल. मेरा गोल क्या था? 2-3 मंथ्स है, आई हैव हॉलीडे, आई हैव टू लूज as much weight as possible. But मैंने ये नहीं सोचा what will happen when I will start eating all these food again. I'm a foodie. I love to eat and eventually I will start eating all these food. So I was eating boiled foods mostly and I wasn't eating any fried even which was made at home. And I would say it was my biggest mistake, second biggest mistake after the sugar, and which I should haven't done. अगर मेरे को ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाना था, I should have stick to more balanced diet. I should have let myself enjoy more often. And yeah, I would say that I made a huge mistake at that time. I used to look very dull. मेरा फेस ऐसे कमज़ोर सा लगता था. मेरा फेस में कोई लगता था कि आई एम नॉट हैप्पी. बट it was just like all your redness from your face was gone because मैंने इतनी strict डाइट की थी. I used to do gym also a lot, but मैंने अपनी डाइट भी बहुत strict कर दी थी, which was bad. So after that college incident, after I lost a lot of weight, I was able to maintain my weight for about 1 to 2 years. मैंने अपना weight काफ़ी देर maintain किया था. Eventually what happened,
around 2015, end of 2015, when I was giving my IELTS and GRE exam. I was planning to come to Canada. That time I started gaining weight. Again stress था, काफ़ी sitting देनी पड़ती थी exams के कारण. But I started gaining weight because I couldn't control. I have to eat all those food which I stopped eating before. I'm human being. I will eat. तो उससे क्या हुआ, मेरा थोड़ा weight gain होना शुरू हो गया, which I could see in myself. Then क्योंकि कनाडा का प्रोसेस लंबा था, आई केम टू कनाडा इन 2015 सितंबर. तो जब कनाडा आई, इन स्टार्टिंग मैंने वेट लूज़ करना शुरू कर दिया. तो इन 2016 मैंने टिम हॉर्टन्स, जो कि कनाडा के एक बहुत पॉपुलर कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे मैंने एज अ पार्ट टाइमर स्टार्ट किया. तो टिम हॉर्टन पे काम करते करते वहाँ पे मैंने बहुत मीठा खाना शुरू कर दिया. आई लव दोज डोनट्स एंड मफिन्स, एंड what happened eventually was I started gaining weight again, and this time it wasn't like 5-6 kgs, it was a lot. बहुत सारा weight gain हो रहा था. जितना मैंने 2013 में in 3 months I lost, I gained even 5 to 7-8 kgs more in those years. So sad. I didn't want to look myself in the mirror, which is wrong obviously, but so in 2018 I decided to lose weight again. पर इस बारी मैं वो गलतियाँ नहीं रिपीट करना चाहती थी. Instead of being on such a strict diet, I will let myself be a little loose, not too much, but yes, a little loose. I will enjoy the food I like. Trust me, बहुत hard था. You lose motivation after you have lost so much of weight. आपने इतना effort डाला इतने years का, और वो फिर से gain हो जाए weight और उससे ज़्यादा हो जाए, in fact it's very hard. You have to have that motivation if you have to lose weight. अगर आप में वो होते हैं ना, जुनून नहीं होगा वज़न कम करने का, आप नहीं कर पाओगे. अगर आपको 10 लोग कह देंगे ना आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत है, यू वांट, जब तक आपकी ये अंदर से फीलिंग नहीं होगी. तो इन 2018 मैंने जिम ज्वाइन किया. मैंने फिर से अच्छा खाना स्टार्ट किया, और मैंने ये चीज़ें अवॉइड की, बट उनका रिप्लेसमेंट भी फाइंड किया. जैसे कि शुगर का रिप्लेसमेंट फाइंड किया, अगर कुछ जौन सी चीज़ें मैदे से बनती हैं उनका रिप्लेसमेंट फाइंड किया. आफ्टर आई थिंक 6-7 months I shed a lot of weight, almost all the weight I gained, but it wasn't very easy. इनिशियल वेट तो बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, स्पेशली अगर आप सेकेंड टाइम लूज़ कर रहे हैं वेट तो और डिफ़िकल्ट होता है. बट आई ट्राइड एंड इट हैपन. अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू शेयर माई मिस्टेक्स, माई एक्सपीरियंस थ्रू दीज वीडियोज़ बिकॉज मेरे पास बहुत लोग आते थे, वो पूछते थे कि आपने कैसे वेट लॉस किया, एंड आई वॉन्ट टू हेल्प एवरी वन. आई रियली वॉन्ट टू हेल्प. और फिर 2018 में जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वेट लूज़ करना शुरू कर दिया. 2019 तक मैंने वेट लॉस किया. उसके बाद मैंने फ्रॉम पास्ट 9 to 10 months आई हैवंट गॉन टू जिम एट ऑल. कुछ जो आजकल सिचुएशन चल रही है वो भी रीज़न था, कुछ उससे पहले मैं इंडिया भी गई थी. तो होम फिटनेस क्यों, ये चैनल इसलिए क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव नाउ, आई वेरी वेरी फर्मली एंड स्ट्रांगली बिलीव कि घर से भी वेट लॉस एंड फिटनेस जर्नी स्टार्ट की जा सकती है. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. द मेन पॉइंट आई विल स्ट्रेस हेयर इज़ दैट कि आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, आपको शॉर्ट टर्म गोल नहीं देखना. आई डिड दैट मिस्टेक. आपने मेरी स्टोरी सुनी, मैंने कैसे पहले उसे एक सिर्फ 3-4 मंथ्स का सोचा कि हाँ 3-4 मंथ्स मैं बॉइल्ड खाना खाऊंगी, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, मैं शुगर नहीं खाऊंगी, और फॉर होल माई लाइफ आई विल बी फिट एंड थिन. ये ऐसा नहीं हो सकता. अगर आप मेरे जैसे फूडी हैं, एंड आई बिलीव हर इंडियन होता ही है फूडी,
तो वो आपका बहुत कम समय तक ही सर्वाइव कर पाएगा वेट लॉस। और जब वो दोबारा रीगेन होता है तो बहुत चांसेस है कि वो ज़्यादा रीगेन वेट होके वापस आए। तो हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना है। हमें सिर्फ 3-4 मंथ्स का टॉर्चर नहीं सहना, हमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी है वेट लॉस जर्नी को। नाउ ऑल्सो आई ईट द फूड आई लाइक, जो मुझे पता है विच इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट फूड, बट आई डोंट डू लाइक बिफोर के बहुत सारा एक साथ ही खा लिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। उससे क्या है, मेरी क्रेविंग भी मिट जाती है एंड आई डोंट फील डिप्राइव्ड। जैसे बच्चों का होता है ना, अगर आप उन्हें किसी कोई चीज़ करने को रोके वो वही चीज़ करते हैं। हम बड़ों का भी वैसे होता है। अगर आप अपने माइंड को कहेंगे ना, भाई चीनी नहीं खानी या फिर फ्राई नहीं खाना, इट विल ऑटोमेटिकली पॉइंट योर आइज टूवर्ड्स दोज फूड ओनली कि हाँ वही खाना है। इनिशियली बिफोर माई वेट लॉस जर्नी आई नेवर हैड अ स्वीट टूथ, पर अब मेरे को मीठा खाने का मन करता है क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक अपने आप को शुगर और मीठी चीज़ों से डिप्राइव किया है। तो अब मैंने क्या उसका रिप्लेसमेंट निकाला, शुगर को रिप्लेसमेंट कर दिया है शक्कर से, गुड़ से, जो कि वो भी मीठा ही होता है। तो गाइज, यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी कि हमें क्विक रिजल्ट्स नहीं चाहिए। आपको क्विक रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं इन 3-4 मंथ्स अगर आप बॉइल्ड खाना शुरू कर दो और कुछ वगैरह ना खाओ, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं होगा। तो मेरे एक्सपीरियंस और मेरी गलतियों से सीखें। सो नाउ आई हैव चेंज माई लाइफस्टाइल। आई एम मोर फोकस ऑन अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स रेदर देन शॉर्ट। अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं रिपीट करती हूँ, आप भी कर सकते हैं और इस जर्नी में आई विल हेल्प यू। So if you like my video, consider subscribing, hit that bell icon, like my video and share with your friends and family. Bye bye.